Last time we had stopped at doing choice between void and voidable contract. Okay. यश अग्रवाल, मुस्तकिम, प्लीज वीडियोस ऑन, दीप गोटी, नहीं वो करना पड़ेगा, उसको कुछ बोलना पड़ेगा। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, दोनों तुम लोग का फिर मेरे को लेक्चर 9-10 बजे तक रखना पड़ेगा फिर। ऐसा मत करो, दो वीडियोस ऑन रखो। रिद्धि, अभी वीडियोस ऑन नहीं करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग पेरेंट्स को कॉल करेंगे। प्लीज टाइम वेस्ट होता है बहुत। रोल नंबर 67 SYJC, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग को बोल रहे वीडियोस ऑन रखो। खुशी जैन, प्लीज वीडियो ऑन। सिद्धार्थ, नाउ दोज हु आर वीडियो ऑफ है उनको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। प्लीज यू विल गेट अ मैसेज। illegal agreements we had done yesterday, then distinction between we had done this. Now see here, we'll rapidly cover these 5 kinds of contract. Express contract. What is the express contract? Express contract is a contract which is by words, written or spoken words. A contract which is express, say you give it in writing or you speak some words, so that contract is called as what? Express contract. Okay. So most of the contracts are express contracts. जैसे हम लोग मतलब हम लोग कुछ बोलेंगे, लिखेंगे, वर्ड्स यूज करेंगे। वी विल यूज सम वर्ड्स। तो रिक्शा वाले को बोलेंगे कि हमको चेकना का लेके चलो, तो आपने वर्ड यूज किया, तो एक्सप्रेस किया आपने, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज बाय बिहेवियर। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर बाय बिहेवियर। जैसे से यू आर गोइंग फॉर से एक सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन है, मालूम है, देखा ना सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन होती है। ओके, सो सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन, तो आप उसमें कॉइन डालते हो तो सॉफ्ट ड्रिंक आ जाता है, कैन आ जाता है ना। तो वो क्या हुआ? यू आर नॉट यूजिंग एनी वर्ड्स, you are just doing, you are putting the money, it's a behavior and that it comes out. So it's a which contract? Contract by behavior. What it is called? By what? Behavior. Tacit contract. Okay, behavior से contract होता है। Okay, now let us read this too.
आलिया खान प्लीज वीडियो ऑन. सैफ मोतीवाला, दीप गोटी, कृष्ण शर्मा प्लीज वीडियोज ऑन. हाँ, मैं 2 बार जिसका नाम है एब्सेंट हो गया समझो. सैफ मोतीवाला, योर नेम विल कम अगेन. नो, a contract is said to be express when it is entered into between the parties by words written or spoken. So spoken words or written words. Express when it is entered into between parties by word written or spoken. For example, A goes to B, writes to B, I am prepared to sell my car for rupees 60,000. उसे लिख के दिया. Writes a letter to B that I am ready to sell my car at 50,000, 60,000. B accepts the offer by telegram. उसमें भी telegram से बोला yes, मुझे मंजूर है. The contract is an express contract. Okay. A contract is said to be tacit when this can be inferred from the conduct of the parties, that is behavior of the parties. It is by what? Parties के behavior से लगता है. A enters into a contract by his conduct with the a person enters into a contract by his conduct without expression of words. A goes to supermarket, lifts a pack containing 1 kg of sugar. If the owner of the market sells the pack, it's a tacit contract. Suppose तुम लोग ने ना 1 किलो शक्कर उठाई, सुपरमार्केट में गए, डीमार्ट में गए या तो सुपरमार्केट में गए, 1 किलो शक्कर उठाई और उधर काउंटर पे रख दिया. उसने आपको बोला पैसा बताया स्क्रीन पे, आपने पैसे दे दिए, तो वो क्या हुआ? कुछ भी वर्ड नहीं बोला. So that is called which contract? Tacit contract. What? Tacit by behavior. Have you followed this? Express is by words. Even if you use a single word, it becomes an express contract. Tacit is mainly by behavior. A gets into public बस में गए, तो मतलब तुम लोग ने एग्री किया है. You have agreed. वो लोग बस चला रहे हैं, तो मतलब वो लोग ऑफर दे रहे हैं. They are making an offer and you enter it. You enter it means you have accepted the offer. So it is by behavior. A obtains a ticket from automatic weighing machine. आया समझ में? Any doubts in this? Only 4 points were done. वहां पे कहां पे? हाँ, इलीगल किया ना हमने. वी हैव डन ऑल, नो? हाँ. Explain briefly the express contract, tacit contract. Tacit मतलब बिहेवियर से, बोलने का नहीं. कितने लोग बोलते हैं यू हैव अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग विथ योर बेस्ट फेलो, मतलब तुम लोग की आपस में मिली भगत है, तुम लोग उसको बोलते नहीं हो लेकिन तुम लोग कर रहे हो ऐसा. तो दैट इज कॉल्ड टैसिट, मतलब बाय बिहेवियर, फॉलोड बाय द कंडक्ट. कंडक्ट इज अप्रोप्रिएट वर्ड. ए गेट्स इनटू पब्लिक बस. अभी पब्लिक बस कोई घुमा रहा है, चला रहा है, पब्लिक एक गवर्नमेंट की बस चल रही है, तो वो ऑफर दे रहा है बाय कंडक्ट, हम चल रहे हैं, लिखा हुआ, मतलब इट्स बाय कंडक्ट एंड यू गेट इनटू बस. वेइंग मशीन का एग्जांपल, टिकट पैसे डालो और उसमें वजन आ जाता है. तो यू आर नॉट यूजिंग एनी वर्ड्स विथ अनदर, यू आर नाइदर राइटिंग वर्ड्स, यू आर नॉट इवन स्पीकिंग वर्ड्स, बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन सा दे. तो ये क्या हुआ? हाँ, अभी टिकट्स भी होते हैं कि नहीं? टिकट्स, कार्ड से टिकट निकालते हैं, तो इट्स अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, नो सी ये वर्ड है ना, इंप्लाइड वर्ड है ना, आगे चल के थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बता दो, क्योंकि है ना वर्ड्स का मारामारी है इसमें, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में. तो एक वर्ड से होता है और एक बिहेवियर से होता है. ओके, नाउ इंप्लाइड,
इन सम सिचुएशंस, नाउ फर्स्ट ये ना, इसके ऊपर तुम लोगों का फुल चैप्टर है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 7 देख लेना है। हाँ, टिकट फ्रॉम कंडक्टर, तो फिर तुम लोग बोलते हो तो एक्सप्रेस हो जाता है, लेकिन सपोज एक फिक्स रूट पे बस चलती है, तुम लोग बस के अंदर नहीं, एक्चुअली तुम लोग बस के अंदर एंटर हो गए ना, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तुम लोग कंडक्टर से टिकट मांगते हो तभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जब तुम लोग बस में एंटर करते हो ना, इट मींस यू हैव टू एंटर इनटू, यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर बाद में तुम लोग उसको कंक्लूड कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो। इंप्लाइड, नाउ सी हियर, फर्स्ट लिसन द सेंटेंस। ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पूरा चैप्टर है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट अंडरस्टैंड वॉट एवर यू कैन। पूरा चैप्टर है एंड वी हैव कवर्ड इन वन पैराग्राफ। सी हियर, चैप्टर नंबर 8 है। सी हियर, एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स अ राइट एंड ऑब्लिगेशन। एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स अ राइट एंड ऑब्लिगेशन, मतलब तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो तुम लोग को कुछ राइट्स होती है एंड कुछ जिम्मेदारी होती है तुम लोग की। ऑब्लिगेशंस होते हैं कि नहीं तुम्हारे, कि नहीं होते, बताओ। You have certain rights and you have certain obligations under a contract. You accept it. तुम लोग खुद राइट्स लेते हो और खुद ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट करते हो। सपोज यू आर टेलिंग दैट टेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपको पूरा ये पेंट करके दूंगा 5,000 रुपए में, तो यू हैव अ राइट टू रिसीव 5,000 एंड इट इज योर ड्यूटी टू पेंट इट एवरीथिंग प्रॉपरली। हाँ, और पर ये तुम लोग ने जो राइट्स और ऑब्लिगेशन जो तुम लोग ने सेलेक्ट किए हैं वो ऑन द ओन किए हैं ना, यू हैव नॉट डन, you have not done this rights and obligation by force. तुम लोगों ने खुद चॉइस किया है कि मैं कलर करूंगा और 5,000 लूंगा। एग्री किया, यू हैव एग्रीड और नॉट? पार्थ पंचाल प्लीज पे अटेंशन। पार्थ पंचाल प्लीज, लेक्चर चालू है इधर। नॉट लिसनिंग, नॉट हियरिंग, कुछ नहीं चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा? नाउ यू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन यू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम लोग ने 5,000 में कलर का कॉन्ट्रैक्ट पेंट करके देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो दैट यू हैव डन बाय चॉइस और बाय फोर्स? यू हैव डन बाय चॉइस, है ना? बट समटाइम्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तुम्हारे सर पे आ जाती है, राइट्स भी आ जाती है, ऑब्लिगेशन भी आ जाता है, दोनों तुम्हारे सर पे आ जाते हैं विदाउट यू एक्सेप्टिंग इट। मतलब कभी कभी लॉ बोलता है कि ये तेरे को करना पड़ेगा और ये तेरे को मिलेगा। अरे यार, मैं तो कुछ मांगा ही नहीं था आपसे। लॉ क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, you don't create, you don't offer and accept, and there is no free consent. लॉ बोलता है कि नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, तो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इन सम सिचुएशंस लॉ इंपोजेस ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स अपॉन अ पर्सन, मतलब लॉ आपके ऊपर राइट्स और ऑब्लिगेशन डालता है। सच राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर सिमिलर टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। Such rights and obligations are created even though the person never intended to create contract. देखो बता रहा हूं, एक मिनट, सिंपल इसका मीनिंग क्या है? मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं तो मुझे कोई फोर्स करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर, ये तुझे मिलेगा, ये तुझे देना पड़ेगा, ये तेरी राइट्स है, ये तेरा ऑब्लिगेशन है। नो, नोबडी फोर्सेस यू, यू एंटर विथ योर ओन विल, यू एंटर विथ योर ओन विल, इजंट इट? कोई फोर्स करता है ये आपको करना पड़ेगा और ये आपको मिलेगा, चल ये कलर कर और 5,000 ले, तेरे को 5,000 मिलेगा और कलर करना पड़ेगा। यू विल से आई एम नॉट एग्रीइंग। ओनली इफ यू एग्री देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट कभी कभी क्या होता है, राइट्स और ऑब्लिगेशन तुम्हारे पे कौन इंपोज करता है, कौन थोपता है? लॉ। एंड दीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर सिमिलर टू
द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही आ गए हमारे जीवन में, जबरदस्ती, समझा, बिन फेरे हम तेरे, ऐसा हो गया ये कानून। Such contracts are called quasi contract. I'll give you example. हाँ, I'll give you example of quasi contract. Suppose you find a mobile. किसी का मोबाइल आपको रास्ते पे से मिला. Now what the law says, you know? It is your obligation to find the true owner. तुम लोग की जिम्मेदारी है, क्या करो कि ट्रू ओनर को फाइंड करके आओ. Try to find. And when the true owner meets you, you should hand over the mobile to him. ये law बोलता है, तो it's obligation by law. You may not be doing it, but what the law says, okay. And then अगर तुम लोग का कुछ खर्चा हुआ है उस मोबाइल को संभाल के रखने में, या उस मोबाइल ओनर को फाइंड करने में, फाइंडिंग द ट्रू ओनर एंड प्रिजर्विंग द आर्टिकल, इस पे कुछ खर्चा हुआ है, तो दैट यू कैन डिमांड. इट्स योर राइट टू डिमांड. So not this right that you should return the mobile, then you should try to find the new owner. First you should try to find, of course, and then return it. मतलब फाइंड करो, उसको दे दो, फिर उससे पैसे मांगो कि मैंने आपके मोबाइल को संभाल के रखा था, उसमें मेरा खर्चा हो गया, और मैं आपको फाइंड करने में मेरा बहुत खर्चा हो गया, तो मेरे को यहां पे आने के लिए खर्चा हो गया, तो वो सब डिमांड कर सकते हो. दैट इज योर राइट. Now these rights and obligations are what? Are imposed by law. Law imposes rights and obligations upon a person. Such rights and obligations are similar to rights and obligations created by a contract. Such rights and obligations are created even though the person never intended to create such rights and obligation. Means उसे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं rights and obligation है मेरे पे. उसने खुद कभी नहीं विश्वास लगता कि मैं मोबाइल ढूंढूंगा, मेरे को पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं था. उसने मोबाइल ले लिया, बस उसको लॉ के हिसाब से कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आ गए. ओके, फॉलो दिस. तो ये क्या हुआ? ये जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट की जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट हो गया. बोलो, जबरदस्त हुआ कि जबरदस्ती हुआ? किसने क्रिएट किया? खुद ने कि लॉ ने? सियर अंडर, हाँ, किसने किया क्रिएट? बताओ फटाफट. जबरदस्ती हुआ. यस. Such contracts are called quasi contract or constructive contract or certain relation resembling those created by contract. For example, if a person finds some goods belonging to another, in such a case it is the duty of the finder to try to find out the true owner of the goods. What is your duty? Your duty is to find the true owner. Also the true owner has a duty to pay expense incurred by the finder in tracing the true owner. ट्रेस करने का, उसको ढूंढने के लिए जो खर्चा वो देना पड़ेगा. These rights and duties are created by law and not by agreement. Okay, so this is a quasi contract. Follow this. So you got express contract, tacit contract. This is by words, this is by behavior, and this is what implied by okay. Follow this, all of you. Alia Khan, your video is not on. Pars Panchal, your video is not on. अभी ऑन हुआ. कृष्णा शर्मा, ओके. हाँ, समझा? These rights and duties are created by law. Now, type of contract. See here. Type of contract: offer and acceptance. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ये छोड़ो, ये नहीं लिखने का है, ये कुछ नहीं है.
हम फोर्थ वाला करते हैं, ये बाद में बताऊंगा जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करेंगे तब। या executed contract, what if the consideration from profit is given or executed, such contract is called contract with executed consideration। जिसमें दोनों पार्टियों ने काम कर दिया है ना, if the consideration for the promise in a contract is given or executed, मतलब लेन देन हो चुकी है, तो it is such type of contract is called contract with executed consideration and it is called executed contract। An executory contract is a contract in which reciprocal promises or obligations which serves as consideration is to be performed in future। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, जैसे तुम लोग ने एक होटल में गए, यू वेंट टू रेस्टोरेंट और बोला कि एक डोसा लेके आओ, मसाला डोसा लेके आओ, तुम लोग ने डोसा खाया और पैसे दे दिए, काम हो गया खत्म। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? एग्जीक्यूटेड। व्हाट, विच वन? एग्जीक्यूटेड। सिद्धार्थ नायर, थोड़ा फेस नहीं दिखाई दे रहा है। प्लीज। देन उसके बाद एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स? Executory contract is a contract in which reciprocal promises or obligations which serves as consideration are to be performed in future। मतलब जैसे I went to a hall, मैंने एक बैंक्वेट हॉल बुक किया एंड आई टोल्ड दैट मेरे को 27 तारीख को हॉल चाहिए, आई विल पे 5000। सो मैंने अभी 5000 दिया नहीं है और उसने अभी तक हॉल दिया नहीं है। मतलब ये क्या होगा? फ्यूचर में होगा। ही विल परफॉर्म हिज प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन इन फ्यूचर, I will also perform in future। An executory contract is a contract in which reciprocal promises, मेरा promise 5000, उसका promise हॉल देगा, हाँ, और obligation which serves as a consideration is to be performed in future। future में करेंगे तो क्या हुआ? ये executory। दोनों ने कर दिया काम तो क्या? executed। now you are getting it? यस और नो? फटाफट ध्यान से पढ़ो, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा इसका एग्जाम होने वाला है। लिख के, हाँ। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। एक ही पार्टी का बाकी है तो उसको यूनिलैटरल बोलते हैं। ओके, दोनों का बाकी है तो क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी। और दोनों का बाकी होता है तो बायलैटरल भी बोलते हैं। व्हेन ऑब्लिगेशंस और प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, इट इज नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल मतलब अकेला। यूनिलैटरल मीन्स अकेला। जैसे मैंने एक आदमी को बोला कि ये पैसे ले लो और मुझे मैंगोज डिलीवर कर देना, प्लीज डिलीवर मैंगोज एट माई होम। तो I paid the money. Now who has to do? Both of them has to do the work or only his promise is pending? उसका काम बाकी है ना, एक का काम बाकी है खाली, तो it is called unilateral। Follow this? बायलैटरल और एग्जीक्यूटर में कोई फर्क नहीं होता है, सेम ही है दोनों। दोनों सेम है। यस। When the obligation or promise in a contract is outstanding on the part of both the parties, it is known as bilateral contract। दोनों का बाकी है तो क्या बोलेंगे? bilateral। एक का बाकी है तो unilateral, दोनों का बाकी है तो executory भी बोलते हैं, और दोनों ने कर दिया तो if both of them have done तो executed। if both are pending then you call two terms, executory भी बोल सकते हैं उसको, bilateral भी बोल सकते हैं। एक का बाकी है तो unilateral। you got it all four? हाँ या ना बोलो बच्चों, या नॉड कर सकते हो, यस ना भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फॉलोड एनीबडी? बायलेटरल मतलब दोनों का काम बाकी है। जैसे मैंने बोला, मैंने सेम एग्जांपल दूंगा एग्जीक्यूटरी का, दैट 5,000 रुपीज मैं बोलूंगा, मैंने बोला हॉल बुक कर दो, हम लोग ने एग्री किया है दैट वो मुझे हॉल देगा, मैं उसको पैसे दूंगा, तो वो क्या है? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन प्रॉमिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। जैसे देखो, हमने ओला बुक की है, तो बुक हो गया, तो उन लोग ने एग्री किया हम आपको वहां तक छोड़ के आएंगे जगह तक, और आप पैसे दोगे। अब उसने आया नहीं है ओला, अभी तक आ रहा है, तो क्या होगा? नहीं, मैक्सिमम 2 नहीं हो सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं, सबका पेंडिंग है। हाँ, बहुत ज्यादा करके 2 ही पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसलिए हम लोग 3 पार्टियों के तीनों का पेंडिंग होना चाहिए। बायलेटरल में हम लोग 2 ही वर्ड यूज करते हैं, ओके, 2 के लिए। फॉलो दिस, बायलेटरल, यूनिलैटरल, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, ओके। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट। मैंने बताया था तुम लोग को वॉइड कल बताया था मैंने तुम लोगों को ना। An illegal agreement differs from void contract on certain respects. Both are unenforceable. दोनों enforceable नहीं है. A contract which is unenforceable due to any reason is void. What is a void contract? It is not enforceable. A contract which is unenforceable, void is not punishable. Yes, we will come to that. Which is not a contract which is unenforceable as the object is unlawful is illegal agreement, and agreement which law forbids is an illegal. वो law बोलते हैं कि नहीं करने का, ऐसा unlawful है, object is unlawful, तो it is illegal. And if it is unenforceable for any reason, किसी भी कारण से वो unenforceable है, तो इसको void contract बोलते हैं. But if it is not enforceable because it is unlawful, then it will be what? Illegal agreement. You don't even call illegal contract because it never makes a contract. So क्या किया था कल हमने? If the contract is not enforceable due to any reason, किसी भी कारण से वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या है? void होता है. लेकिन if it is unenforceable because the object of the agreement is unlawful, so it is illegal. An illegal agreement is invalidates collateral transaction also. Now ये बहुत मुश्किल है. For example, an agreement with a minor is void but not illegal. अच्छा, और क्या? An illegal contract invalidates collateral transaction. An illegal agreement is like an infectious disease and is fatal not only to the main contract but other collateral contract acts. मैं बताता हूं, ये एग्जांपल दिया है, सुनो. Collateral contract means a contract which is connected or linked with the main contract. Collateral मतलब connected. Now ये बता रहा हूं, सुनो. Here, ये से एग्जांपल दिया है. A gives loan to B, a minor, and C gives guarantee to A that B will repay money. You getting this? ये समझ में आया? पहले बताओ मैंने क्या लिखा है. A is giving loan to minor, बच्चे को लोन दे रहा है किसी को, और B क्या बोल रहा है? C बोलता है मैं गारंटी देता हूं, B देगा पैसा, आई एम गिविंग यू गारंटी. नाउ ये लिख दो तो अच्छा रहेगा. कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A and B is main contract
and contract of कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी इज अ कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट, है ना. मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ए और बी का. ए इसको लोन दे रहा है, ए बी को लोन दे रहा है, और सी गारंटी दे रहा है कि डर मत मैं दूंगा. तो सी ने किसको गारंटी दी? ए को. तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी इज विच कॉन्ट्रैक्ट? मेन कॉन्ट्रैक्ट है कि कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है? बोलो. कनेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. ओके. नाउ यार ये ना, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. मेन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, बट कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. हाँ, मतलब contract between A and C will be valid. A and B का कॉन्ट्रैक्ट void है, मेन कॉन्ट्रैक्ट is void. between whom? But collateral contract is valid. Contract between A and C will be valid. Okay. आया समझ में कि नहीं? अच्छा. A gives rupees 50,000 to X, sorry to B. B माइनर नहीं है, मर्डर X. C gives guarantee to A that X will, sorry, B will do the job. ये समझा ये कि नहीं? A ने B को पैसा दिया 50,000 कि क्या कर, C को X को मर्डर कर. नाउ C गिव्स गारंटी. C गारंटी देता है कि अरे नहीं करेगा मैं पैसे दूंगा, चल. नाउ हियर द प्रॉब्लम. contract between A and B is main contract, और वो लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है. इलीगल है. और A and C is collateral, and since the main contract is illegal, collateral contract will also be illegal. मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है ना, तो कोलेट्रल भी. यहां पे मेन वॉइड था. क्या था? मेन वॉज वॉइड, मेन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, लेकिन कोलेट्रल वैलिड है. कोलेट्रल इज वैलिड. कनेक्टेड. कोलेट्रल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेट्रल? कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. ओके. तो कनेक्टेड, अगर मेन वॉइड है तो भी कनेक्टेड वैलिड होता है, लेकिन अगर मेन इलीगल है तो इफ द ओरिजिनल मेन कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल तो क्या होगा? तो होगा कोलेट्रल भी इलीगल हो जाएगा. फॉलो दिस. लिखा ये.
Finish, Ritesh? Okay. See, now ये एग्जाम्पल ऐसे ही दिया हुआ है यहां पर सेम चीज. इफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, अगर मेन वॉइड है तो भी कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड है ना, क्योंकि वॉइड है तो चलेगा, कोई बात नहीं. इफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, द कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बिकम्स इलीगल, वो भी इलीगल हो जाता है. तो सेम एग्जाम्पल, ए गेव अ लोन टू माइनर for buying luxuries. B gives guarantee to A. The contract by A to give loan to minor is void. Agreement but not illegal. In such a case, the guarantee given by B, किसने गारंटी दिया, किसको दिया, हाँ, B is a collateral contract and is valid. X gives money to Y to murder Z. P stands as a guarantor. तो यहां पे तो सब इलीगल हो जाएगा, है ना. समझाइए स्टोरी. वॉइड होता है उसका कोलेटरल वैलिड रहता है, और अगर इलीगल होता है तो कोलेटरल भी क्या हो जाता है, इलीगल. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेटरल? कनेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट? कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, अनएनफोर्सेबल. ओके. Now unenforceable वर्ड खाली एक ही जगह यही यूज करने का. नेवर यूज द वर्ड unenforceable, ऑलवेज यूज द वर्ड नॉट एनफोर्सेबल. कौन सा वर्ड यूज करने का बच्चों? बोलो बोलो, मेरे को लिप्स मालूम पड़ जाएगा, मेरे को लिप्स मूवमेंट से हाँ मालूम पड़ जाएगा. जोर से ऐसे बोलो, इससे तो इंटरेक्ट लगना चाहिए क्लास है ना यार. सुनिए, नॉट एनफोर्सेबल. अनएनफोर्सेबल कभी, तुम लोगों को पता है हम लोग ने असेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट किया था. असेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमने. क्या किया था उसमें, क्या किया था पहला उसमें? कंसेंसस एडिडिम, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. सब किए थे कि नहीं हमने? फ्री कंसेंट. उसमें एक था कि राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन. कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल, कॉन्ट्रैक्ट में भी राइटिंग. राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है. अरे हमने तो अभी पढ़ा, विदाउट वर्ड्स भी हो सकता है, बिहेवियर से भी हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट में भी विदाउट बिहेवियर ऑल्सो, विथ बिहेवियर ऑल्सो, विदाउट वर्ड्स. तो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर लॉ बोलता है कि इट शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड, तो फिर आपको राइटिंग में करना पड़ेगा. अगर लॉ सेज दैट इट शुड बी रजिस्टर्ड, देन इट हैज टू बी रजिस्टर्ड. इफ लॉ इज साइलेंट, जैसे हम रिक्शा में जाते हैं तो क्या हम राइटिंग में करते हैं कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट लेके आते हैं, रिक्शा वाले साइन कर. होटल में आते क्या साइन कराते हैं? नहीं. बट अगर लॉ सेज कि ये कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आपको राइटिंग में करने पड़ेंगे, स्टैंपिंग करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, तो फिर then it is compulsory. And if you don't do that, it becomes void because of technical defect. A unenforceable contract is a contract which cannot be enforced by law due to some technical defects or legal flaw or legal formalities not complied with. जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर 12 में किया है ना, तुम लोग ने किया है ना बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स. बिल ऑफ एक्सचेंज तो किया ना, स्टैंप लगा, स्टैंप लगाते मालूम है, स्टैंप होता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे ना. इफ द अगर तुम लोग कोर्ट में लिखे गए बिल ऑफ एक्सचेंज कि साहब इसने मुझे पैसे लिए, देखो साइन किया है लेकिन स्टैंप नहीं मारा, और सॉरी पैसा नहीं दे रहा है, कोर्ट में एनफोर्स करने जाओगे तुम लोग, नहीं देगा कोई पैसा तो. पर अगर तुम लोग ने बिल ऑफ एक्सचेंज पे स्टैंप नहीं मारा है ना, तो कोर्ट बोलेगी नहीं हम नहीं सुनेंगे, बिकॉज इट इज नॉट स्टैम्प. सो यू आर करेक्ट, but there is a technical defect. What is it? Or legal flaw, or legal formalities not complied with. Legal formalities नहीं हुई है इसकी पूरी. Follow this? Now, समझाइए. तो unenforceable contract is a contract which is not enforceable because of legal flaw, legal mistake. Flaw मतलब mistake.
फ्लॉ मीन्स मिस्टेक. फ्लॉ का मतलब क्या होता है? मिस्टेक. लीगल फ्लॉ, लीगल मिस्टेक और लीगल फॉर्मेलिटी इज नॉट कंप्लाइड विथ. डेब्ट्स बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन कैन नॉट बी रिकवर्ड, हेंस अ डेब्ट इज टाइम बार्ड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सर. ये नहीं समझा बता दो क्या है डेब्ट मतलब. ये समझा पहले, ये पहले बेसिक समझा, मतलब एग्जांपल देता हूं. ये समझा सबको? वापस समझाऊं क्या? सी अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टैंपिंग नहीं किया है, कुछ लीगल गड़बड़ है, बाकी सब सही है. ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, लीगल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट सब है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, कुछ लीगल मिस्टेक है, तो वो कोर्ट सुनेगी नहीं. तो इट बिकम्स नॉट अ नॉट एनफोर्सेबल, इट इज कॉल्ड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. क्या? इट इज कॉल्ड व्हाट? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. तू ज्वाइन होके देख, एक मिनट चला के देख, इधर चला के देख स्क्रीन कैसे दिखता है. हाँ, ओके. नाउ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट. एग्जाम्पल, you know, if you give money to others, somebody, then that is called debt. What? DEBT, debt. Okay. Now if he doesn't pay, suppose the person is not paying the money to you, पैसा नहीं दे रहा है, then you have to file a case within 3 years. How many years? You have to file a case within how many years? You have to file a case within 3 years. Now if you don't file a case in 3 years, then it becomes barred by limitation, not allowed. Barred मतलब not allowed, not allowed by law of limitation. टाइम लिमिट खत्म हो गई, आप तीन साल के बाद आए हो कोर्ट में. Hence when a debt becomes time barred, the contract becomes unenforceable. Time barred debt is a debt if 3 years have passed from the due date of the debt and now this debt cannot be recovered. मतलब किसी को हमने उधार दिया है, 3 साल हो गए, हमने केस फाइल नहीं किया, तो तुम लोग 3 साल के बाद कोर्ट में जाओगे ना, तो लॉ विल से नमस्ते, आप बहुत लेट आए, आप आए अच्छी बात है, लेकिन हम आपको सुनेंगे नहीं. You are unenforceable. You may be correct, but you have come late. So that is called what? Unenforceable. क्या ये? Unenforceable contract. बराबर. नहीं, मुझे लगा फोटो तो दिखाई नहीं दे रहे. Unenforceable contract. Technical defect. अच्छा, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बताओ, कभी लाइफ में काम में आएगी आगे चल के, अभी नहीं. अगर किसी ने किसकी प्रॉपर्टी ले ली है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सपोज मेरे चाचा ने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, मेरे चाचा ने मेरी प्रॉपर्टी ले ली और मुझे मालूम नहीं था, उसने मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली और बस ऐसा कुछ भी गड़बड़ कर दिया, ले ली, तो मैं केस फाइल कर सकता हूं. आई कैन फाइल अ केस विद इन 12 ईयर्स. हाउ मेनी ईयर्स? 12 years. 12 years के बाद it is what? Unenforceable. क्यों? टाइम लिमिट खत्म हो गई. So it is a limitation. What? It's a limitation. Follow this or no? So unenforceable पता चला आपको क्या होता है? Now rights in rem and rights in personam, ये हमने किया था. Rights in rem means right against a particular thing or whole world. Thing against a particular thing, the whole world. For example, X owns a car. He is entitled to possession of the car against the whole world. मतलब rights in rem मतलब suppose कैलकुलेटर है, तो ये कैलकुलेटर पे किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ मेरा है. I can tell to everyone, don't touch this calculator, it is mine. So I have a right over a thing. That is called rights in rem. Rights in personam means right against a particular person.
Harry has to pay 1 lakh to Mr. Jayesh. Jayesh has a right against Harry. Jayesh हरी पे केस कर सकता है कि नहीं? This is called rights against in personam. Every contract creates what? Rights in personam. ये हमने पहले भी किया है. Rights just in rem. Rights in rem मतलब things पे. Right on things. Okay. And rights in personam मतलब right against a person. तो contract creates which rights? Contract creates right against a person. You can enforce, you can take that person to the court कि भाई ये नहीं कर रहा है, बोल के नहीं कर रहा है, देखो इसको बोलो करने को, इसको बोलो कि ये पैसा देवे, इसको बोलो कि ये ऐसा काम करके देवे, ये मुझे कार डिलीवर करे, हॉर्स डिलीवर करे, जो भी बोला है इसने, ये मुझे पेंट करके दे. तो contract creates rights in personam and rights in rem मतलब rights against a particular thing. ओके, फॉलो दिस. हाँ, तो अभी है ना खाली ये चैप्टर खत्म है. अब देखो तुम लोगों को बताता हूं. हाँ, एक चैप्टर में कुछ ओवर लॉ ऑफ कुछ एक चीजें छूट गई है बीच में. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑल दैट वी विल डू व्हेन वी एंड सेकंड चैप्टर. पर पहले सुनो, अभी ना लॉ का टेस्ट होगा ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर बाय हार्ट इट. तुम लोग कोई भी बच्चे को पूछ लो हाँ कि लॉ में डिफिकल्टी है कि नहीं, तो 2-2 3-3 बार पढ़ाई करके फिर आ जाता है. सो व्हाट यू डू, सबसे पहले सबसे इजी काम ये ना, ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं. अनफॉर्चुनेटली इसके आंसर या फॉर्चुनेटली आंसर्स भी दिए, लेकिन तुम लोग है ना ये पढ़ के देखो, आंसर्स भी दिए हुए, बोल्ड किया ना, आंसर्स भी दिए हुए. हाँ, तो ये 30-40 ऑब्जेक्टिव्स है, वो पढ़ लो पहले तुम लोग फर्स्ट. हाँ, तो यू विल गेट सो मच आइडिया क्या. और दूसरे ऑप्शंस भी देखो, आंसर्स भी दिए हुए, ऐसे भी और बोल्ड करके भी दिया हुआ है. हाँ, इट इज नॉट, इट इज जस्ट रिकैप करने का खुद के लिए. ओके, तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंड देन स्टार्ट रीडिंग. हाँ, तो तुम लोगों को आज क्या है, टुडे इज ट्यूसडे नो. तो तुम लोगों को फ्राइडे को एग्जाम होगा इसका लॉ का, लिख के फर्स्ट चैप्टर का. फॉलो, आर यू रेडी नो ऑल ऑफ यू? पढ़ लोगे नहीं इतना तो तुम लोग आराम से कि नहीं? हाँ, ऑब्जेक्टिव करो, ट्राई करो.